Namaskar. Good evening, friends. We apologize for the delay of this press conference to all of you. हम माफ़ी चाहते हैं कि हम 45 मिनट लेट हुए हैं क्योंकि ट्रैफिक में हमारे कुछ मेंबर्स फंस गए थे. अब ये सुशांत सिंह खुद बोल रहा है कि एक्टर्स थे इसलिए लेट हो गए. मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन एनीवे ही इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट. दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री की, और ये फिल्म इंडस्ट्री की पांचों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशंस हैं. और फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में इन पांचों संस्थाओं का, पांचों ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ही एक अहम जगह है इनकी. तो मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दूं हमारे जो पैनल पे हैं आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स. वी हैव अजीत श्रीवास्तव, ही इज फ्रॉम द डायरेक्टर एसोसिएशन. We have Amit Bahel, who is from the CINTA, Film and Television Artists Association. We have Zama Habib Saab, he is from the Writers Association. We have Sushant Singh ji, who heads the CINTA, Cine Artists Association. We have Sudhir Mishra, the well-known director, who is part of IFTDA. We have VP Singh Saab. VP Singh Saab is the president of IFTDA, Indian Film and Television Directors Association. I have Rahul Ravel Saab. Rahul Ravel Saab is the executive committee member of IFTDA. Kushan Nandi, a director whose last film was a very big hit, Babu Moshai Bandukbaz. Gangeshwar heads the film studios, setting and allied Mazdoor Union. I have Sukant. Sukant heads he's a president of the Art Directors Association. I have Kuku Kohli Saab, who is a part of IFTDA. Now, very simple things which I want to start off with, and then all our speakers will speak on behalf of the associations. The reason why we have called this press conference is very simple. We are hurt because we have been abused, we have been accused, and we have been treated like hoodlums. We are filmmakers, we are creative people, and we don't deserve this kind of a treatment. Sanjay Leela Bhansali, now we had Madhur Bhandarkar before this, and this story keeps on happening. Every month, every now and then, we see our directors, our producers being heckled. Films will not be allowed to be released, and so on and so forth. Things keeps on going on. So we are together today. And in fact, Ajit, Ajit to piche aaja. Ajit piche aaja. Vikram ji, good morning. Yeah, Vikram Gokhale Saab, who is the president of CINTA. He needs no introduction. So basically, that is the reason, and it's the first time all the associations thought together that it's very important to stand up together and speak together, that this is not what we are here for, and we don't deserve this kind of a treatment, because we work hard, we make films, we do our research, and Sanjay Leela Bhansali today is a symbol, and attack on him, not allowing his films to be released, all the kinds of words being used for him is not on him. It is basically, we very strongly feel that it is abuses to the entire creative fraternity of this industry. So we condemn any kind of behavior towards any director, any art director, any creative person, or any actor for that matter in this industry. And today we have taken this call together. So to begin with, I'll request Sudhir to speak some few words, and then we will go one by one. Sudhir. It's very simple. First of all, the matter is little absurd. Nobody has seen the film. The director, producer of the film, who is a responsible, established, brilliant filmmaker, has said that whatever you are accusing me of, I have not done.
then I do not understand this extra constitutional bodies treating him, like Ashok said, like a petty hoodlum, like he's being treated like just a person who, as if a person who has no sense of responsibility, is not an artist, but just somebody who can slap around and literally was slapped around. So this whole issue is that's number one. But number two, there is a body which is called the Central Board of Film Certification. Now, Sanjay Leela Bhansali will submit the film to the Central Board of Film Certification. And that's the body, that's the constitutional body that is supposed to pass a judgment on whether that film, and there are then methodologies which we don't need to go over. We often fought this, and today there is at the head of that organization, though, I mean, it's a body, so, I mean, individuals don't matter, but we saw some time ago that individuals matter. So you have a person like Prasanna Joshi, who is a poet, scriptwriter, advertising professional, filmmaker, a sensitive person, aware of and responsible about the effect of films on a larger society. But thirdly, this is an attack on freedom. We are all, I mean, this is very stifling. The history is ours. So, I mean, to interpret history, please disagree with me, please write against me, please do anything. And this has been repeated so many times that, I mean, it's boring even to talk about it. Please do anything, but allow the film to be released. Stay 500 meters away from the theater, raise banners, say this film should not be seen, publicize, make a counter publicity campaign against the film, but you cannot stop the film from being released. So, because this creates an atmosphere where nobody attempt films on Indian history. I mean, so, I mean, I think that all of us have gotten together, and I hope the industry people who are not here are there in spirit. So, we all condemn what's happening and stand firmly behind Sanjay Bhansali. I request BP Singh Saab to speak some. BP Singh Saab is the president of IFTDA. See, all of us, we had to come together because if not now, then it will be never again. I mean, it's happening every day, and we had to, all this association, first time I think coming together, because Sanjay Leela Bhansali represents the film industry. Today he is one of the topmost directors. He has brought laurels, honor to us, to the country, and not only in India, abroad. There is a respect for Indian cinema now because the way he has taken it to a level which has not happened before. So instead of being respected, he is being abused, and hang him if he has committed a mistake. Please, once the film is released, everybody can see that whether he has done some mistake. And the person who has spent about 20-25 years in film industry, he understands when he makes a film, it's an opportunity, not a license. He understands it. He is a senior producer. He understands that this is not a license to misuse freedom. We all understand that. So instead of being accused that you are misusing freedom, of course we need freedom to make films. We need freedoms to make programs. We understand that we don't misuse it. And Sanjay Leela Bhansali is the last person who would do it. And the opportunity, it's a costly opportunity. It involves hundreds of crores. The person is not he's not an ordinary person who will just spend money like that. So we all condemn it, and we all are together behind him, and that's why all the associations are here. Thank you very much. I request Rahul Ravil Saab
to please. This whole controversy of Padmavati, we as an industry have just got over the draconian censor board, which has finally got over with Madam Smriti Irani coming in as the information minister, and we have Prasunji there. But to replace this draconian board, we've now got this new thing, which is curbing the rights of filmmaker. As a filmmaker, he is entitled, Sanjay Bhansali is a responsible filmmaker who is entitled to tell history in their own way. He's not changing history. Secondly, whether Padmavati is actually a chapter from history or is it a folklore? Nobody knows that. In the same basis, if a Mughal-e-Azam is made today, it should not be made, it should not have been made in the first place. Anarkali is not a character from history. So, people make films, even history. When they make it, they have to add some kind of element in it which keeps the audience going, and the director has his own perception. Secondly, I find it very strange that some people start objecting to this film without even knowing what it's all about. Nobody knows, excepting Sanjay and his unit. I don't think anybody knows what the film is about. So how can you start objecting to a film? And I'm of the opinion that even if you object to a film, don't go and see the film. Don't try and throw your weight around, we will not let this happen and we will not let that happen. I think it's high time that the government, I'm sure they will take steps for this. This kind of thing is not repeated, and filmmakers get the opportunity to do what they like. They're not held at ransom, and I wish there are more people like Sanjay Bhansali around who will carry on doing this thing. I'll request Gangeshwar. Gangeshwar heads Film Studios Setting and Allied Mazdoor Union. So all the allied workers of the industry, which are in lakhs in number, Gangeshwar ji represents the workers of the industry. So he's here to support the entire movement. Gangeshwar. हेलो हम लोग संजय लीला बंसाली के सपोर्ट में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि उनके फिल्म को हम सपोर्ट करेंगे। आज संजय लीला बंसाली एक ऐसे प्रोड्यूसर है कि साल में कम से कम 2-4 हज़ार लोगों का घर चलाते हैं और एक ऐतिहासिक फिल्में बनाते हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं कि रानी पद्मावती का हम विरोध कर रहे हैं फिल्मों का, जितने लोग विरोध करने वाले हैं गली गली में, उनको पता ही नहीं होगा कि रानी पद्मावती कब पैदा हुई थी, कब ख़त्म हो गई। कुछ जो लोग यहाँ पे दूसरे लोगों ने झंडा उठाया, वो लोगों ने भी झंडा उठाना चालू कर दिया है। तो हम लोग संजय लीला बंसाली के सपोर्ट में हैं और हमारे सारे वर्कर और हम सारे यूनियन मिल करके उनको सपोर्ट करते हैं। और अगर संजय लीला बंसाली ने, मैंने कई बार देखा कि उन्होंने बोला है कि जो चीज़ अगर गलत है आप लोग साथ में बैठिए, उसको हम काटेंगे। और सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक संस्था सेंसर बोर्ड बनाई है। सेंसर बोर्ड से आगे बड़ा कोई भी नहीं है, हम या कोई भी। सेंसर बोर्ड है, एक कानूनी है। अगर जिसको लगता है कि गलत है वो कोर्ट जाए, कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, कोर्ट जाए। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो भी कानून हाथ में लेगा, यहाँ की गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट उसके साथ कड़े तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी। और हम सब लोग, हम सारे यूनियन वाले मिल करके फिल्म सिटी में 11 तारीख को 16 तारीख को संजय लीला बंसाली के फिल्म के सपोर्ट में उनके साथ हम लोग खड़े होने के लिए खड़े रहेंगे 11 बजे। और शाम को 4 बजे, 4 से 4:15 बजे मुंबई में कहीं भी शूटिंग हम 15 मिनट के लिए नहीं होने देंगे। सारे प्रोड्यूसरों से, सारे वर्करों से अनुरोध करेंगे कि 15 मिनट के लिए हम संजय लीला बंसाली के साथ खड़े रहना चाहिए। और हमारे इंडस्ट्री के साथ लोगों को लगा, हमारी एक इंडस्ट्री ऐसी है कि हम
एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। हम अलग अलग प्रांत से, अलग जातिवाद से हैं। कुछ लोगों ने बोलता है कि इंडस्ट्री वाले केवल पैसे के लिए नहीं, हमारे में जो एकता है, हम कहाँ के होकर के भी एक दूसरे के लिए, हर क्राफ्ट के लोग हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और हमारे में जितनी एकता है, अगर हमारे सारे लोग, मुझे जिस हिसाब से ये मीटिंग हुई है और आगे हमारी मीटिंग होगी 16 तारीख को, हम एक साथ होकर के किसी भी हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन या एक्टर, किसी के ऊपर भी कोई भी खड़ा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा तो हम नहीं करेंगे। हम भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हम कानून पे भरोसा करते हैं, कानून अपना काम करेगी। हम लोग संजय लीला भंसाली के साथ में हैं। Sukant, from the Art Director Association, Sukant is a very well-known art director, and he has solid, body of work with him. Sukant. पहले तो जो सभी लोगों ने बताया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके, और सभी को अधिकार है, और जिसको पसंद है नहीं है वो नहीं देखे, बट वो इस तरह से जो होलीगनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हम सरकार को भी अपील करेंगे, और जो भी संस्था है, जो भी जगह में इस तरह का चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वो देख रहे हैं, उस जगह का संस्था या जो कानून काम ले। और हम जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को इतना रोक दिया जा रहा है, मतलब आप माध्यम हो हमारे, मतलब आपके थ्रू से लोग सुन पाएंगे हमारी बात। बेसिकली ये कोई पब्लिसिटी, हम फिल्म वालों के साथ कुछ भी होता है और ऐसा कुछ बात होती है तो लगता है कि ये भी पब्लिसिटी स्टंट है। ऐसा कोई स्टंट नहीं है। ये हम बंसाली जी के साथ, मतलब उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ जो भी हुआ है वो बहुत सही नहीं हुआ है, और ये हम सब लोग हर्ट है, दुखी हैं, और हमारे पास उस तरह का तरीका नहीं है जो बाकी होलीगन्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम किसी तरह से आपके थ्रू से ये मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री, पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी, पूरी स्टोरी टेलर्स सब हर्ट है, और इस तरह का चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे। हम यही दरख्वास्त करेंगे। थैंक यू। Two announcements which Gangeshwar made, we have to be very clear on that. On 16th at 11 o'clock, the industry of all the crafts will get together in support of Sanjay Leela Bhansali outside the gate of Film City. It will be a very silent support to Sanjay Leela Bhansali, and Sanjay Leela Bhansali is a symbol who is representing the film industry. So the entire film fraternity will come out and will request all those protesters to please allow us to make the films which we want to make. Secondly, at 4 o'clock on the same day, from 4 to 4:15, there will be no shooting in the entire city. And Gangeshwar heads the workers' union, so it's a very big union. For 15 minutes, there will be no shooting, the lights will be switched off, and this will be a symbolic support to the entire film fraternity, that nobody in future should take us for granted and start ridiculing us, start abusing us, and start treating us like, we see on television channels, ये पैसे कमाते हैं। तो ये जो लोग जो ये इस किस्म की बदतमीजी हमारे प्रति करते हैं और हमारे अगेंस्ट ऐसी बातें करते हैं, तो हम उनको ये कहना चाहेंगे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम 24 घंटा काम करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, और हम ईमानदार लोग हैं, और हम उतने ही नेशनलिस्ट हैं जितने कि वो हैं। इसमें कोई दो डाउट नहीं है। ले आओ, ये हमारा सिंबॉलिकल पोस्टर है विच ऑल ऑफ अस विल स्टैंड बाय, and then we will go in for question answers which anybody wants to ask. Yeah. खड़े हो गए। Sushant from the Sinta
सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन। थैंक यू फॉर वेटिंग। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे, हमारी मंथली एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग थी सिंटा की, इसलिए लेट हो गए। एक बात जो मैं यहाँ स्ट्रेस करना चाहूँगा, संजय लीला भंसाली ने हमसे नहीं कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी जो है, आर्टिस्ट कम्युनिटी, पूरी फिल्म कम्युनिटी है, हर बार किसी फिल्म को लेकर के जब भी कोई विवाद खड़ा होता है या धमकियाँ दी जाती हैं, उस फिल्म का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या राइटर या एक्टर एक्चुअली कभी अपनी कम्युनिटी से अपील नहीं करता है कि यार प्लीज आओ मुझे बचाओ। हम लोग रिस्क लेना जानते हैं, हम लोग वो कौम है जो जिंदगी में रिस्क ही लेते हैं, इसीलिए इस फील्ड में कूदे थे, और रिस्क लेते हैं तो लड़ना भी जानते हैं अकेले। लेकिन हम लोग सब तंग आ चुके हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुखी हैं कि कब तक हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स सिर्फ एक बेसिक चीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा तो काम ही एक्सप्रेशन, और हमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ना पड़ेगा हर बार, बार बार, क्यों? और यहां पर मेरा सवाल स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, आप चुप क्यों हैं? आप ही की पार्टीज के लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, हमारी फैमिलीज के बारे में आप शनाब बक रहे हैं कि फिल्म मेकर्स की तो फैमिलीज ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, ये फिल्म रिलीज होगी तो हम जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या एक आजाद देश का रिस्पॉन्सिबल लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, क्या मुझे यह अधिकार है कि नहीं कि सरकार मेरे बिहाफ पर बोले, मुझे यह आश्वासन दे कि घबराओ मत, खुलकर बोलो, अपने विचार व्यक्त करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हारी हिफाजत के लिए सरकार है। यह आवाज कब आएगी? लेटर मैं बाद में बोलूंगा। विक्रम जी को माइक दे रहा हूं। नमस्कार दोस्तों। संजय लीला भंसाली ये बड़ा डायरेक्टर है, एस्टैब्लिश है, सक्सेसफुल है या नहीं है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहली बात तो ये है, सवाल ये उठाना चाहता हूं मैं कि हम जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या वो सचमुच हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? अगर हमें डेमोक्रेटिक लिबर्टी नहीं है तो क्यों फिल्म बनाए, क्यों एक्टिंग करे, क्यों डायरेक्शन करे, क्यों कविताएं लिखे, क्यों निबंध लिखे, क्यों पुस्तक लिखे? ये जो प्राइवेट सेंसरशिप जो है उसके मैं टोटली खिलाफ हूं। सालों से मैं देख रहा हूं, दिस इज माय 63rd ईयर इन द इंडस्ट्री। जब जब भी ये ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि ये फिल्म हम नहीं लगाने देंगे, ये नाटक हम नहीं खेलने देंगे, कोई बोलते हैं हम खेलेंगे, लाठिया काठिया सब लोग आते हैं लेके, नतीजा क्या होता है? फाइनली पीपल आर वाइज, ऑडियंसेस आर वाइज, दे कम, दे सी, इफ दे डिसलाइक दे गो अवे, they're right, but that is the correct way in democratic country like us. मुझे तो ऐसा लगता है ये तो मौकरी है डेमोक्रेसी की। तो हम कौन से समाज में रह रहे हैं हम? ये आज की तारीख में नहीं हुआ है, ये पिछले 25 सालों से मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े लोग, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, कहते कि हमें पहले फिल्म दिखाओ, बाद में हम बताएंगे कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी। दिस इज समथिंग फूलिश, वेरी फूलिश। अगर एक कोई चित्रकार कहता है कि मैं खींच रहा हूँ चित्र, तो कोई बोलता है कि पहले हम देखते हैं, बाद में तुम्हारा चित्र हैंग होगा। कोई कहता है कि मैं कविता लिख रहा हूँ, कोई कहता है कि हमें पहले कविता सुनाओ, चाहे फिर हमें कोई जानकारी है कविता लिखने की या नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं हमें तो नहीं ना उसमें कोई धक्का तो नहीं लगा रहे हैं कवि महाशय, तो ही हम अलाउ करेंगे। दिस इज समथिंग फूलिश। संजय लीला भंसाली ये हमारा सबका दोस्त है, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ, इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। समझिए कि गलती अगर हो गई है भी तो यू हैव द पेन पेपर,
मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ कि भाई संजय लीला भंसाली ने ये जो दिखाया ये हमको पसंद नहीं है। लेकिन आके लाठी घाटी चलाना, सेट्स जलाना, भगाना, मारामारी करना, दिस इज समथिंग वेरी foolish. So I condemn this sort of behavior from so-called audiences. I wish Sanjay Leela Bhansali all the best. जो भी कोई गलतियाँ होती है वो हर एक के हाथों से होती है, मेरी हाथों से होती है, आपके हाथों से होती है, सभी के हाथों से होती है। हम गलती करते हैं इसलिए हम इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है। संजय लीला इज़ नॉट भगवान। लेकिन अगर गलती हो गई है तो उसको बताने के लिए कोई अलग तरीके होते हैं डेमोक्रेसी में, उसको अपनाइए। ये हमारा अपील है सारे ऐसे उन लोगों को कि जो संजय लीला भंसाली या उसका काम जो है वो नापसंद करते हैं, मत देखिए फिल्म। अगर देखने के बाद अच्छा, जिन्होंने देखी भी नहीं है वो भी शुरू करते हैं कमेंट्स। पहले फिल्म देखो। सेंसर भी आप ही के लोगों ने तैयार की है, आप ही ने तैयार की है, तो सेंसर के सारे लोग अनपढ़ हैं। अगर सेंसर ने उनको सर्टिफिकेट दिया है पब्लिक शो के लिए, एग्जीबिशन के लिए, इसका मतलब है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको किसी को ठेस पहुंचे, किसी विशिष्ट समाज को ठेस पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा विचार किया जाए कि इसी तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल फिल्में जो बनी हैं, पॉलिटिकल फिल्में या हिस्टोरिकल तो बात की बात है, मैं पॉलिटिकल फिल्मों की बात कर रहा हूँ। उसमें तो ऐसे कितने सारे ऐसे किस्से हैं कि जहाँ लोगों ने गुनाह किया है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में, लेकिन उसको अच्छा बताया है, तब कहीं कोई उठ के नहीं आता है कि नहीं ये गलत है। तो इसको संभालना चाहिए ऑडियंस ने। और ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आप सभी से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी दोस्तों से कि ट्राई टू बी जस्ट। अगर आप लोगों के हाथों में है ना, फिल्म बाहर आने के बाद आप भी बताएंगे, लिखेंगे, आपका अधिकार है वो, तो आप कीजिए जो करना है, बोलिए। जिनको देखनी है फिल्म वो देखेंगे, नहीं देखनी है नहीं देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Zama, Habib Sahab. Zama ji from the Writers Association. He is a very important member from the Writers Association. देखिए, खबर और कहानी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि खबर वही होती है जो घटना को हम एज इट इज़ बता देते हैं, और कहानी वो होती है जब हम उसको इंटरप्रेट करके बताते हैं। सो वो इंटरप्रिटेशन हमेशा स्टोरी टेलर का अपना होता है, इसलिए वो कहानी कह भी रहा है। और हर कहानीकार का, हर डायरेक्टर का अपना एक मंशा अपनी होती है कि मैं इस कहानी को इंटरटेन करके सुनाऊं। कभी भी किसी भी कहानीकार या किसी भी डायरेक्टर की मंशा नहीं होगी कि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए कहानी लेके आ रहा हूं बाजार में, ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि फिल्म जहां पे इतने पैसे एट स्टेक होते हैं, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी फिल्म कोई ना देखे, मेरी फिल्म का मतलब बहिष्कार हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा। सो ये हम सबको एक चीज समझनी है कि हर डायरेक्टर, हर कहानीकार चाहता है कि मैक्सिमम लोग इस फिल्म को देख सकें, ताकि मैक्सिमम, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूं, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक फिल्म पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा टिकट बिके, ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। ये बड़ा कमर्शियल एंगल है। सो किसी संजय लीला भंसाली हो चाहे कोई भी हो, वो नहीं। दूसरी बात एक चीज है कि अभी जो ऑफलेट हो रहा है, हम सरकार चुन रहे हैं ताकि वो हमारी देखभाल करें, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दें, हम हर चीज की हमारी वो जिम्मेदारी लें। ये मोहल्ले मोहल्ले के जो सरकार बनते जा रहे हैं, वहां पे एक अनार्की की तरफ हम जा रहे हैं। दिस शुड नॉट बी डन। यहां पे सिर्फ मेरी या इनकी या उनकी कोई राय नहीं है, यहां पे आप सबको भी प्लीज एज जर्नलिस्ट आप सबको भी हमारे साथ आना होगा और उनको बताना होगा कि भाई ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की है, गवर्नमेंट की है। सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी ये है कंप्लेन करना। कंप्लेन करने के 10 तरीके आपको बताए गए, हमें भी बताए गए। मैं 50 फिल्में पसंद नहीं करता हूं, मैं नहीं जाता हूं देखने के लिए। मुझे कई डायरेक्टर पसंद नहीं है, मैं उनकी फिल्में नहीं देखता हूं, ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं उनको घर जाके उनके दरवाजे पे खड़ा नहीं हो जाता हूं कि तू कल से फिल्म नहीं बनाएगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। ये क्या ये बेवकूफ़ी है।
सो ये प्लीज हमें समझना होगा कि, और दूसरी बात ये कि एक शख्स का आप बॉडी ऑफ वर्क देखिए, जिस आदमी ने पिछले 20 साल में 25 साल में इतना कुछ किया हुआ है, हम ऐसे ही मतलब मैं तो जानता तक नहीं हूं, मैं मिला तक नहीं हूं सुधीर जी से, मैं बहुत कम ही मिला हूं, लेकिन उनका बॉडी ऑफ वर्क देख के मैं खुद अपने आप में उनको रिस्पेक्ट करता हूं। इसमें वो डिमांड नहीं करते हैं हमसे, वो कमांड करते हैं रिस्पेक्ट। और ऐसे शख्स को कोई आदमी हाथ से मारे, कोई बदतमीजी करे, इस छिछोरेपन पे हम आ गए, इस तरह की सोसाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या है? सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि जो सरकार का काम है सरकार को करने दें, जो हमारा काम है, जो हमारी पब्लिक का काम है, वो पब्लिक उसी लेवल पे करें, एक अच्छी सिविल सोसाइटी की तरह बिहेव करें, ना कि वो मोहल्ले का हम सब ने अपना एक एक मतलब झंडा उठा लिया है, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। तो भाई सरकार हट जाओ भाई, इन्हीं लोगों को चला लेने दो, हर मोहल्ले मोहल्ले में जो जीतेगा अपने अपने मोहल्ले में कर लेगा। हम कबीले वाली जिंदगी जी लेते हैं, पुराने जमाने में जंगलों में जैसे जिया जाता था। सो प्लीज हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले फिल्म देखो, समझो, और वो सामने वाला आपको बार बार कह रहा है कि मैं वो चीज नहीं कर रहा हूं जिस पे आपको शिकायत है, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? आप देखिए तो सही प्लीज। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक एक एक करके आप प्लीज, एक एक करके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज। कैन वी सिद्धार्थ, एक सेकेंड। या यू सिंह, आप क्या पूछ रहे हैं? आश्वासन अभी तो हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मिलेगा आश्वासन। हाँ सर, आज से शुरू किया है ना, तो अभी मिलेगा आगे, अभी पता चलेगा ना क्या सर उनका रिस्पांस क्या पता चलेगा हमको, तो बता देंगे आप। ये चीज अशोक जी, यार अगर एक साथ चिल्लाओगे तो नहीं हो पाएगा, प्लीज यार, लेट अस, हम वैसे ही बहुत दुखी हैं, प्लीज यार। अशोक जी, आपने ये जो कॉन्फ्रेंस आज की, जब संजय लीला भंसाली पे हमला हुआ था उस समय इस तरह का एक्शन फिल्म इंडस्ट्री ने क्यों नहीं लिया था? आप मतलब उस दौरान आपने शायद देखा नहीं होगा कि किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे थे और किस लेवल पे हम एक्ट कर रहे थे। और दोस्त एक बात बताऊं, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम मेंटली उस एरिया में नहीं है कि हम सड़क पे आके हम गाली गलौज करेंगे और चिल्लाएंगे। हमको भी समझने में टाइम लगेगा। ये तो आज हम जमा हुए हैं और ये आगे बढ़ेगी बात बॉस। उस वक्त क्यों नहीं किया और इस वक्त क्यों नहीं किया, आई थिंक दिस इज नॉट इन गुड टेस्ट। ये सवाल सही नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग क्रिएटिव लोग हैं बॉस, हम लोग मोर्चेबाजी वाले लोग नहीं है ना, हम मारामारी में बिलीव करते हैं ना हम करते हैं। अब अगर 10 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ गई हैं तो आई थिंक दिस अ वेरी गुड वेरी गुड फीलिंग विच द एंटायर इंडस्ट्री हैज गॉट टुगेदर। अब एक डर भी होता है, एक आदमी सहमता भी है किस लेवल पे हम ये करेंगे। और एवरीबडी इज आदमी जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा है और वो खड़े हुए हैं और धीरे धीरे इस मैसेज को हम पास करेंगे। या वेल यू राइट, पद्मावती मतलब देखो क्या है, we all said that not only Padmavati, we spoke about Hindu Sarkar also. Any film, any work which has been approved, Sudhir is here, Yeah, but we stood up for Urta Punjab. We stood up for lipstick under my burqa. So, I mean, in fact, there has been a very good change. Give it time, right? From a time when a filmmaker was battling alone, today a young person like Alankrita, right, has the support. Did you ever see this happen before in the industry? I mean, Kushan Nandi sitting here. Bansali is a big name, but we stood for Kushan. It was a small film, right? His first film, right? So, I mean, everything has an opportunity. You know, I mean, I know this is an interesting question, but stop the interesting question and appreciate the effort that, and it's difficult to get this together, huh? It's everybody, and still, I mean, whether we agree with Bansali or whether I agree with Bandukbaz, whether I agree with Alankrita, you have to stand and united in front of when there's an attack on democracy itself. So this attack, we are here to. You are absolutely, any film, any work
anything, we are here to protest against it. There is no two opinions on that. This is not, we are not taking sides, and it's not कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है. We stood for every film, and to be very honest, ये कुछ ज़्यादा हो, मतलब it's becoming, it's going over our heads now. We are feeling insecure. That's why we have got to there. We are feeling insecure. We are getting frightened. We are getting fearful. The entire industry is under fear psychosis that whether we should make films or not make films. So this ये जो डर पैदा हो गया है, ये डर के सामने खड़ा होना, उसको अपोज करने के लिए हिम्मत चाहिए. And we, all the organizations have gained that confidence, and we will see to it that somewhere things will get into the right frame. There's no two opinions on that. अशोक जी, आप सभी यहाँ पर, अशोक जी, आप सभी यहाँ पर जिन्हें सपोर्ट करने आए हैं संजय लीला बंसाली को, आपको नहीं लगता कि उनके टीम से या उन्हें खुद भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए था? सुशांत ने पहला सेंटेंस बोला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय लीला बंसाली की नहीं है. जो विक्टिम होता है ना, जिस पे अटैक होता है, उससे आप उम्मीद मत करिए कि सड़क पे आके बाहर आके बात करेगा आपसे. सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट एरिया. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पांचों एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी उसकी है. इट्स अ फ्रेटर्निटी. As I rightly said in the beginning, that Sanjay Leela Bhansali is a symbol. This is an attack on the entire industry. This is not an attack on a single person. हम सिर्फ संजय लीला बंसाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सारे फिल्म मेकर्स, सारे फ्रेटर्निटीज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. इन पे ये लगातार अभी जो अटैक हो रहा है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है, क्योंकि ये चल रहा है, उसका रेफरेंस है. अशोक जी, मेरा क्वेश्चन, I'll answer this question. There are two issues. One sec. There are two issues. One is CBFC. You become a victim of CBFC. So it is that particular film which has been cut and edited and not allowed to release. When people are on the streets, when political parties are on the streets, when there is a fear, आप देखिए उसके घर के नीचे line से there are more than 100 policemen standing there. So we don't want to take a risk on their attacks or something like that. And it is our responsibility also. It is your responsibility also. वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? I think it's not in. अशोक जी, आपने जैसे कहा कि फर्स्ट टाइम 5 एसोसिएशन हैव कम टुगेदर. डू यू फील सो कि आप लोगों की, मतलब आज के पहले आपस में कितनी यूनिटी है? और ये पूछना था कि कभी भी कोई मेकर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो डू दे रियली बिलीव इन द बॉडी or they many time take the political help, actually. So that is what you really feel, because it has happened many times. ऐसे होता है बहुत. नहीं, पहली बात तो ये है कि हम लोग आपस में कैसे हैं क्या नहीं है. दो जब फिल्म बनते हैं ना, तो सारे डिपार्टमेंट के लोग सेट पे होते हैं. तो अगर वो यूनिटी नहीं होगी तो सेट पे होंगे नहीं. तो ये धारणा अपने आप से निकाल लीजिए, क्योंकि हम सब एक साथ काम करते हैं, एक ही सेट पे होते हैं. तो यूनिटी कोई फिल्म इंडस्ट्री को नहीं सिखा सकता, ना हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री को सिखा सकता. वी नो व्हाट यूनिटी इज ऑल अबाउट, एंड वी ऑल मेक फिल्म्स टुगेदर. एक फिल्म में 200 लोग होते हैं जो साथ में काम करते हैं, 200 लोग से ज्यादा लोग होते हैं. तो जब तक यूनिटी नहीं हो तब तक फिल्म बन नहीं सकती. और लेट अस फॉर गॉड्स सेक बी टुगेदर, सो दैट ये बार बार जो हम पे अटैक्स होते हैं, बार बार जो हमारे ऊपर सवाल उठते हैं, हमारी इंटेंशंस पे सवाल उठते हैं, वो न हो. डेफिनेटली द फिल्म इंडस्ट्री today with these organizations, tomorrow with some more organizations, tomorrow the producers association will come together, hopefully, and we will see to it that there has to be some stop on this. We compliment Prasun Joshi's statement saying that the film will come to CBFC. We will take a call, and he has condemned the people who have taken this kind of this thing. We really want to compliment Prasun for this. We also want to request our dynamic INB Minister Smriti Irani ji, that please give us confidence, please protect us. We are writing letters to her tomorrow. We are writing letters to Rajnath Singh ji, the Home Minister, that we should be secured, we should be protected, because we filmmakers contribute a lot to this image of this country. We are great filmmakers, we are creative people. तो हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जितनी की बाकी इंडस्ट्री है. थैंक यू वेरी मच. Thank you for everything.